थोड़ा प्रमोद सर, हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी आपसे डिस्कस करना चाहते थे, पर्टिकुलरली जो करंटली वॉर्स चल रहे हैं। इजराइल गाजा हमने थोड़ा डिस्कस किया, रशिया यूक्रेन, एंड पर्सनली मेरा ये मानना है दैट जितने भी वॉर्स हुए हैं मोस्टली मिडिल ईस्ट में हुए हैं, प्रोबेबली इंस्टिगेटेड हैं, फॉर अ पर्पस कराए गए हैं। जैसे कि एक इराक वॉर था, उससे रिलेट इराक वॉर जो यूएस एंड इराक का वॉर था, प्रोबेबली हमने डिस्कस भी किया कि कहीं उनके पास केमिकल वेपन्स थे नहीं। उससे रिलेटेड हम आपको कुछ कंटेंट दिखाना चाहते हैं एंड उस पर आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं। About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Okay, I think looking at this video, to me it is looking very funny. एक जनरल लेवल के सीनियर ऑफिसर यदि वो ये बोल रहे हैं कि I mean, it was a very funny situation and very typical situation where people are picking up paper and just saying that, okay, we are going for war without any logic. And if he's saying, and he may be right, but I don't think in India में ऐसा कभी हो सकता है. इंडिया में ऐसा ना तो मैंने देखा है ना मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है. अमेरिका तो फिर अमेरिका ही है. अमेरिका ने अपनी धरती पे कभी वॉर तो लड़ी नहीं है. वो तो अपनी कंट्री के बाहर जाके जो है वो लड़ती है. एंड डेफिनेटली इज़ अ बिग कंट्री, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वर्ल्ड पीस के लिए ज़्यादा है बाकी सबसे. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, एंड ये देख के हम 1-2 और क्लिप्स देखेंगे आगे कि ये प्रोबेबली वॉर्स बिजनेस के लिए करते हैं ताकि वेपन्स बनते रहें, यूज़ होते रहें. हाँ, हो सकता है, बिकॉज जो गल्फ वार हुई थी उसमें काफ़ी लोगों का ये मानना था कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस टाइप का जो है मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल और ये सब जो है एंटी मिसाइल सिस्टम वगैरह, ये हो सकता है, ये हो सकता है. बट मुझे ये वीडियो देख के ये लग रहा है कि यदि आप जनरल थे तो व्हाट डिड यू से? आपने कुछ ओपिनियन अपने नहीं डाली? आप भी तो जनरल थे आर्मी के, तो आपको भी तो बोलना था कि नो, दिस इज नॉट करेक्ट. But I don't know what was his opinion when he saw this kind of thing. और इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी जगह उसके सैनिक रहते हैं, कहीं अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही, कहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा है वेपन्स का. तो जब वेपन कंज्यूम होंगे तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए फैक्ट्रीज चलेंगी, नया कमर्शलाइजेशन ऑफ वेपन्स का तो है ही. तो जैसे गल्फ वॉर का तो इट वाज वेरी क्लियर कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है कि इतने टाइप के हमारे पास सिस्टम है, आओ आप हमसे खरीदो. तो ये वॉर में ये होता है. नए वेपन्स बन रहे हैं
तो पुराने खत्म करेंगे तभी तो नए स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो जगह का है। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली राइट, बट उसके लिए वॉर करना मुझे नहीं लगता कि ये सही है. किसी कंट्री को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो जस्ट फॉर योर कमर्शियल पर्पस, आई थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट. ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है. जैसे इंडियन हम लोग भी करते हैं, हमारे पास भी पुराने इक्विपमेंट रखते हैं, उसका एक तरीका है डिमोलिशन करने का. ऐसा कौन है कि हम जो है वो सिर्फ डिमोलिशन करने के चक्कर में हम किसी छोटी कंट्री पे अटैक कर दें. एटलीस्ट इंडिया तो कभी ये हमारी ना तो साइकोलॉजी है ना ये हमारी पॉलिसी रही है. यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रॉबर्ट कैनेडी जूनियर. ये जॉन कैनेडी एज प्रेसिडेंट थे, उनके नेफ्यू हैं. उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले रिगार्डिंग दिस होल थिंग. एंड इसमें मैं थोड़ा वो भी बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इसके बारे में भी बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर II वेटरन, इनफैक्ट ड्वाइट आइजनहावर, उन्होंने जब प्रेसिडेंट थे तो ये वॉर्न किया था अबाउट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बेसिकली वॉर फिर प्रॉफिट्स के लिए लड़े जा रहे हैं. ये हमारे वर्ड्स हैं, उन्होंने सिमिलर लॉन्ग वर्ड्स में बताया था, वॉर प्रॉफिट्स के लिए लड़े जा रहे हैं रादर देन सेल्फ डिफेंस. या आई थिंक ऐसा मैंने भी किसी आर्टिकल में पढ़ा था, जो गल्फ वॉर हुआ था उसमें यही हुआ. इतनी सारी आई थिंक सम 30-40 कंट्रीज वर टुगेदर एंड दे वर फाइटिंग. तो उसमें I think one of the country had made a lot of profit also. This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden's asking for another $60 billion. But the big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. This can be one of the angle actually. This may be, but it cannot be the only one.
if one country is going for war, वो कंट्री को भी पता है कि उसको भी क्या क्या लॉसेस होंगे, पूरी इकोनॉमी जो है वो शटर हो जाती है if any country is going for a war. तो just for selling somebody's item, no country will dare to take this kind of step to go for war. Unless वो blindly corrupt हो गए. या तो बिल्कुल ही वो countries run by those kind of people. या तो जो उनके वेपन मैन्युफैक्चरर हैं या तो वो कंट्री को चला रहे हैं. Otherwise, no sensible person in a powerful position will take this kind of action कि just for them he goes for a war. No, he will never लेकिन do आप that. ऐसे भी देखिए जो वॉर बाय चॉइस थे, जैसे गल्फ वॉर 1 जो 91 से शुरू हुआ, तभी वो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा था, तो दे नीडेड टू मेक समथिंग हैपन टू मूव द इकोनॉमी. अभी भी जैसे ये पोस्ट कोविड थोड़ा अभी सब कुछ डाउन जा रहा था, तो दे प्रमोटेड दीज वॉर्स. नेटो एक तरह से अमेरिका का ही काइंड ऑफ करा, मतलब वो है एक ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें भी अब देखिए इकोनॉमी एकदम से बूम कर रही है, क्योंकि जो बड़े वो हैं वही सब फाइनेंस करते हैं वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को भी, और वही वो हैं जो बाकी कंपनीज बैंक्स भी वही चलाते हैं, सभी वही. हाँ, this can be. एग्जांपल्स हैं पैरेलल. जो वॉर बाय चॉइस है वो स्लो डाउन के टाइम पे होता है, तो एक नया इकोनॉमिक बूम आ जाता है कि बाकी कुछ नहीं कर सकते तो वॉर करा दीजिए, वो हमारे कंट्रोल में. See, हम लोग ने परव्यू नहीं किया है कि किस बेस पे उन्होंने वॉर किया, तो दिस कैन बी अवर परसेप्शन कि ऐसा इसकी वजह से ऐसा हुआ है. बट एक्चुअल में क्या है वो केवल जो सर्विस में जो लोग होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, केवल उन्हीं को एक्चुअल चीज़ें पता चल पाती हैं. बाकी तो हम सब न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो हम केवल हमारा एक परसेप्शन हो जाता है कि इसके. एंड देन देर आर नंबर ऑफ पीपल, वो कुछ और बोलेंगे, तीसरा कुछ और बोलेगा, चौथा कुछ और बोलेगा, सबके अपने अपने ओपिनियन है. बट जो गवर्नमेंट ने क्यों वॉर पे गए हैं वो गवर्नमेंट ही जान सकती. हाँ, आइडियाज़ हमारे हो सकते हैं कि ये कमर्शलाइजेशन ऑफ वॉर हो रहा है, ये सब हो रहा है, मे भी हो सकता है. मेरे ख्याल से इंडिया में तो क्योंकि हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ले रहे हैं इस सब चीज़ों में, तो ज़्यादा थोड़े वेल रेड जो होते हैं उन सबका यही ओपिनियन है, बिकॉज कोई अदर मोटिव दिखता नहीं है. हाँ, जो मतलब जिस टाइप से वॉर हो रही है और जो लग रहा है उससे तो यही लगता है कि ये एक लॉबी है, जो लॉबी इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि वो उस कंट्री को जो है पुश कर रही है कि यू डू दिस, यू टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन. इट मे हैपन. उन्होंने जो बताया था ड्वाइट आइजनहावर ने, तो उन्होंने बताया था, सो इज द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी इन द काउंसिल्स ऑफ गवर्नमेंट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ अनवारंटेड इन्फ्लुएंस वेदर सॉट और अनसॉट by the military industrial complex. The potential for the disaster rise of misplaced power exists and will persist. तो उन्होंने यही वार्न किया था कि ये लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उतना रिलायंस था उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज पे कि आपको ये वॉर जितवानी है, कि वो उनके पास इतनी अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गई. फिर उसके बाद अब वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे आर्म्स तो क्या करेंगे? एकदम से डिमांड ही खत्म हो जाएगी, सीजन खत्म तो फैक्ट्री बंद कर लेंगे. जो भी मैन्युफैक्चरर हैं डेफिनेटली दे नीड कि कुछ तो कंजम्पशन हो, तब तो हमारी डिमांड बढ़ेगी. अब कंजम्पशन जो अब जैसे बॉम्ब है उसका कंजम्पशन कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है कि कहीं पे जाके ड्रॉप हो बॉम्ब, तभी कंजम्पशन हो सकता है, या फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए. तो लाइफ ख़त्म के लिए तो आपको सालों वेट करना पड़ेगा. तो ये एंगल हो सकता है. बट देन जो पॉलिटिशियन होते हैं दे आर वेरी सेंसिबल, क्योंकि वॉर से जो है दोनों सब जगह का सबका लॉस होता है. और इसमें आपने पहले ही हमें तो बता ही दिया था कि ये वॉर्स बाय चॉइस है. वॉर बाय तो चॉइस हमेशा एक चॉइस तो थी ना करने हाँ, की और डिप्लोमेसी लगाने की, और तो हम कितना भी किसी भी एंगल पकड़े हम सभी सही हैं. क्योंकि वहां पे जब रूम में भी कमेटी बिठाई कि वॉर करनी है कि नहीं, तो हमेशा 2 बोलेंगे नहीं करनी, 2 बोलेंगे करनी है, 2 न्यूट्रल टाइप के भी रहेंगे कि हाँ करने के ये बेनिफिट है, ना करने के ये बेनिफिट है. तो एक कोई इतना क्लियर वो नहीं है कि एक आदमी डिसीजन ले रहा है और वो करप्ट है. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. बहुत बड़ा डिबेट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको मतलब अपन किसी एक फैक्टर पे तो डाल ही नहीं सकते. बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द पीपल इन पावर जो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस. जब अफगानिस्तान से अमेरिकन छोड़ के जा रहे थे तो सब कुछ वहीं छोड़ के चले गए. वो इवन हेलीकॉप्टर्स तक वहीं ड्रॉप करके चले गए.
तो इमीडिएटली डाउट रेज होता है कि ये लेके क्यों नहीं गए, इसका मतलब आप जो नए खरीदना चाहते होंगे या किसी ने बोला होगा यहीं डंप कर दो इसको, तो ये डाउट तो रेज होता है कि ऐसा हो। जाने दो, कोई बात नहीं, नए हाँ, नए आ जाएंगे। और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और इस जैसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।